हालेलुया। प्यारे अजीजों, आपके इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। परमेश्वर आपका आशीष दे। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करके इस इंडिपेंडेंस की जो आराधना और प्रार्थना जो हम देश के लिए जो प्रार्थना करने चाहते हैं, हम आप लोग भी हमारे साथ शामिल हो जाए। आमीन। हालेलुया। Oh yes, thank you Jesus। महान उद्धारकर्ता सर्वशक्तिमान यीशु, मैं तेरे धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु सुंदर समय के लिए। परमेश्वर, आज परमेश्वर एक विशेष कर रूप है प्रभु यीशु हमारे जीवन में। सच में हमारे देश को, हमारे लोगों को आपने आजाद किया। धन्यवाद करते प्रभु यीशु। सच परमेश्वर, कोई भी किसी के बंधन में ना रहने पाए प्रभु। ओ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम हर बंधन को तोड़ देते प्रभु। सच्ची हम सब आजादी से रहने पाए। धन्यवाद करते प्रिय पुत्र यीशु मसीह नासरी के नाम से इस आराधना, इस प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ। आमेन। हालेलुया। Yes. నాతో మాట్లాడు ప్రభువా, నీవే మాట్లాడుమయ్యా. మాట్లాడు ప్రభువా, నీవే మాట్లాడుమయ్యా. నాతో మాట్లాడు ప్రభువా, నీవే మాట్లాడుమయ్యా. Hallelujah. Yes, God, thank you, Jesus. నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించేది, నా బాధలలో నెమ్మదినిచ్చేది. నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించేది, నా బాధలలో నెమ్మదినిచ్చేది. నీవు పలికితే నాకు మేలయా, నీవు పలికితే నాకు మేలయా. నీ దర్శనమే నాకు చాలయా, నీ దర్శనమే నాకు చాలయా. నాతో మాట్లాడు ప్రభువా, నీవే మాట్లాడుమయ్యా. నాతో మాట్లాడు ప్రభువా, నీవే మాట్లాడుమయ్యా. Hallelujah. నీ వేదనలో ఆదరణిచ్చేది, నీవు పలికితే నాకు మేలయా, నీవు పలికితే నాకు మేలయా. నీ దర్శనమే నాకు చాలయా, నీ దర్శనమే నాకు చాలయా. నాతో మాట్లాడు ప్రభువా, నీవే మాట్లాడుమయ్యా. నాతో మాట్లాడు ప్రభువా, నీవే మాట్లాడుమయ్యా. నీ
మార్గములో ఓ వెలుగిచ్చేది నీవు పలికితే నాకు వేలయ నీవు పలికితే నాకు వేలయ నీ దర్శనమే నాకు చాలయ నీ దర్శనమే నాకు చాలయ నాతో మాట్లాడు ప్రభువా నీవే మాట్లాడు నీవు పలికితే నాకు మేలయ నీ దర్శనమే నాకు చాలయ నీ దర్శనమే నాకు చాలయ హల్లెలూయా హల్లెలూయా Hallelujah. Yes, hallelujah, hallelujah. yes आइए हम और एक गाना गाएंगे। भाई तेलुगु में गाएंगे, मैं हिंदी में गाऊंगी। जो कुछ भी हो आप समझने का कोशिश करना। हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए हम आए हैं, हमारे देश के लिए हम लोग प्रार्थना करने के लिए आए हैं। आमेन। यस, मैं विश्वास करती हूँ हमारा देश स्वच्छ भारत और स्वस्थ यानी चंगाई तंदुरुस्त में रहना चाहिए। आमेन। हालेलुया। यस, ओके। हालेलुया। స్తుతి మహిమ యేసు తుజుకో స్తుతి आदर प्रभु तुझको
ఆరాధనా యెహోవా షమ్మా ఆరాధనా యెహోవా షమ్మా ఆరాధనా యెహోవా షమ్మా ఆరాధనా మహేష్ తుజికో ఆదరు ప్రభు తుజికో యెహోవా షమ్మా ఆరాధనా యెహోవా షమ్మా ఆరాధనా యెహోవా షమ్మా ఆరాధనా యెహోవా షమ్మా ఆరాధనా యెహోవారువి ఆరాధనా యెహోవారువి ఆరాధనా యెహోవారువి ఆరాధనా యెహోవారువి ఆరాధనా యెహోవా షాలోమ్ ఆరాధనా యెహోవా షాలోమ్ ఆరాధనా యెహోవా షాలోమ్ ఆరాధనా యెహోవా షాలోమ్ ఆరాధనా యెహోవా షమ్మా ఆరాధనా యెహోవా షమ్మా ఆరాధనా యెహోవా షమ్మా ఆరాధనా యెహోవా షమ్మా ఆరాధనా యెహోవా రఫా ఆరాధనా యెహోవా రఫా ఆరాధనా యెహోవా రఫా ఆరాధనా యెహోవా రఫా ఆరాధనా స్తుతి మహిమ యేసు తుజుకో స్తుతి ఆదర ప్రభు తుజుకో స్తుతి మహిమ యేసు తుజుకో స్తుతి ఆదర ప్రభు తుజుకో హల్లెలూయా హల్లెలూయా Amen. Hallelujah. Yes, నిత్య ప్రేమతో నన్ను ప్రేమించెను నిత్య ప్రేమతో నన్ను ప్రేమించెను తల్లి ప్రేమను మించినది లోక ప్రేమను మించినది తల్లి ప్రేమను మించినది లోక ప్రేమను మించినది
कभी भूलूंगा नहीं, तुझको कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक के समान तुझको कभी भूलूंगा नहीं, तुझको कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक के समान गहरा प्यार से तूने प्यार किया, गहरा प्यार से तूने प्यार किया, माफी दे तेरा से प्यार है, माफी दे तेरा से प्यार है, ప్రేమించెన్ Hallelujah, 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 hallelujah. तेरी मर्जी से मैं चला करूं, तेरी मर्जी से मैं चला करूं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान चलूंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ साथ चलने वाला है। आमेन। Oh yes God. Hallelujah. Oh yes God. నిన్ను నేను Oh yes God. నడువిడువను, నిన్ను నేను ఎన్నడు విడువను, నిత్యము నీతోని జీవింతును. హల్లెలూయా. నిత్యము నీతోని జీవింతును. Hallelujah. Oh Jesus. Prabhu Yesu, कितना महान, कितना महान, विशाल पहाड़ से जग में
प्रभु यीशु कितना महान, कितना महान, कितना महान, कितना महान. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Hallelujah. Oh yes, God, thank you, Jesus. Praise the Hallelujah. Lord. अय्यूब की किताब में लिखा है, अय्यूब की किताब में 33:4 में लिखा है, The Spirit of God has made me. The Spirit of God has made me. परमेश्वर की आत्मा ने हमें रचना किया, बनाया. हालेलुया. దేవుని ఆత్మ నన్ను సృష్టించింది. ఆయన శ్వాస ద్వారా నన్ను సృష్టించింది. ఆమేన్. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सेकंड कोरिन्थियों और सेकंड कोरिन्थियों में 3:17 में लिखा है, जहां परमेश्वर की आत्मा है वहां स्वतंत्रता है. आमेन. हालेलुया. ओ यस, थैंक यू जीसस. आमेन. हालेलुया. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Glory to God. Wonderful also. Praise the Lord. Nice music and worship. We enjoy the worship. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Glory to God. Glory to God. I welcome you all once again. आप सबको स्वागत है and सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. आज हमारा देश भारतवर्ष इंडिया जो है आजादी का दिन 74th इंडिपेंडेंस डे 74वां आजादी का दिन मना रहे हैं. तो आप सबको बधाई हो कि एक समय था कि हमारी पूर्वज जो हमारी देश की थी या हमारी पहले का समय था, लोग कहते कि हम किसी के गुलामी में थे. हम नहीं थे, हमारे को बनाया गया था. तो एक समय आया, बहुत ही ज्यादा लोगों के ऊपर बदसलूकी होती थी. कोई आजादी नहीं था अपना स्वतंत्रता से रहने के लिए. पर किसी ने शुरू किया कि हमें आजादी चाहिए. तो हमारे देश के जो हमारी जो लोग थे पहले के, सब लोग ने इस लड़ाई लड़ी और हमें आजादी मिल गई ब्रिटिशर्स से. लोग बोलते हैं कि अंग्रेजों से मिला. ये तो हमारे देश की लड़ाई आजादी है. यस, हमारी उस बॉन्डेज से, गुलामी से हमें आजादी मिल गई. हम अब स्वतंत्र है. हम अपनी मर्जी से रह सकते हैं अपने देश में और हिंदुस्तान में, अपना देश अपना हिंदुस्तान में हम रह सकते हैं. आप आजादी से रह सकते हैं और किसी को डिस्टर्ब करे बिना आप अपनी हक है. किसी ने एक, मुझे याद है कि फ्रीडम फाइटर बाल गंगाधर तिलक शायद, उन्होंने कहा कि आजादी मेरे जन्म का हक है. तो हमने किताबों में पढ़ा है जब हम स्कूल में जाते थे. तो वो हक जो है, हमारी जो फ्रीडम फाइटर्स ने लड़ाई की, कुर्बानियां दी, अपनी प्राण भी त्याग दिए, कई लोग जीवन को दे दिया. जब जाके बहुत ही मेहनती और मेहनत के बाद, अच्छी लड़ाई के बाद, और वो भी हमारे लोग जो है
क्या कहते हैं कि अहिंसा के द्वारा जो है इस लड़ाई में जय प्राप्त की। तो अगस्त 15 तारीख को हमारा हिंदुस्तान आजाद हो चुका है। हालेलुया। और जब से अब तक 74 ईयर 74 साल हो गए, तो इस देश जो है इस आजादी को मना रहे हैं। तो एक और बात बधाई। इसी संदर्भ में मुझे याद आता है कि यह तो हमारे देश का किसी का हुकूमत से, किसी की सरकार से, किसी की बदसलूकी से हमारे शरीरों का, हमारे देश का आजादी था। लेकिन मुझे प्रभु का वचन याद आता है कि यीशु मसीह ने इस आजादी के बारे में कुछ कहा है। वो आजादी जो मनुष्य को सचमुच आजादी दे सकता है, सचमुच आजादी। अब ध्यान से सुनिए, सचमुच आजादी क्या होता है वो यीशु मसीह ने अपनी बातों में, अपने वचन में बयान किया। मैं आपके लिए पढ़ता हूं कि यूहन्ना समाचार, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 8, यूहन्ना समाचार उसका 8 अध्याय, యోహాను సువార్త 8వ అధ్యాయం. అక్కడ ప్రభు అయిన యేసు స్వాతంత్ర్యం గురించి మాట. The Lord spoke about the freedom, about the liberty. Hallelujah. So Jesus said, and he talked about real freedom. Hallelujah. Yes, Jesus always talks reality. Jesus never talk about something which does not give you impractical. He is real, and that's why he talks reality. So यूहन्ना समाचार उसका 8 अध्याय में यीशु मसीह ने एक बात कही, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ. 8 अध्याय उसका 32 पद में, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 8 वर्स 32. यूहन्ना समाचार 8 की 32 में एक बात प्रभु ने कहा, यीशु ने, मैं पढ़ता हूँ आपके लिए. वो यह है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा. When you know the truth will set you free. సత్యమును ఎరుగుట వలన स्वतंत्रమైపోతావు. हालेलुया. जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा. सत्य మిమ్మల్ని స్వతంత్రంగా చేస్తుంది. When you know the truth will set you free. That is real freedom. Here Jesus talks about real freedom. Hallelujah. And I am thankful to God. He frees people. Jesus frees people. सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करते. सत्य है क्या? दुनिया में सत्य मिलता है आपको? आप किसी के पास भी जाओगे, सत्य बोलने वाला बहुत ही कम मिलता ही नहीं. पहली बात क्योंकि दुनिया में सत्य नहीं है. और मार्केट में जाएंगे, बाजार में जाएंगे, वो आपको सत्य नहीं बोलेंगे. और दुनिया में ढूंढेंगे, सत्य नहीं मिलेगा. तो ये दुनिया जब झूठ की, फरेब की, धोखा की उस जीवन शैली में चल रहा है, तो सही समय पर परमेश्वर यीशु के रूप में इस दुनिया में आया और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा. प्रभु का वचन कहता, प्रभु खुद कहते हैं यीशु मसीह, तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा. सत्य है क्या? यीशु मसीह ने इसी यूहन्ना समाचार की 14 में कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं. यीशु मसीह खुद सत्य है. अगर आप इधर उधर देखेंगे, कोई सत्य है? यीशु सत्य है. हालेलुया. यीशु सत्य है. और आगे जाके वो कहता है कि आपको सचमुच आजादी मिलेगी. आज मैं सुबह आपको हमारी इस आजादी के शब्द का नाम से जब हम बातें करेंगे, आपकी अपनी आजादी तो हमें अंग्रेजों से मिल गया, हमको से अपने हिंदुस्तान में, अपने देश में, लेकिन आपके जीवन की आजादी, आपकी आत्मा की आजादी, आपके शरीर की आजादी,
आपके प्राण की आजादी। तो दोस्तों, आप इसके बारे में जब आप देखेंगे, सोचेंगे, कभी कभी आपको लगता है कि मुझे आजादी सच में मिल गया क्या? यीशु मसीह सचमुच की आजादी की बात करता है। जीसस टॉक्स अबाउट रियल फ्रीडम। हालेलुया। Some people, that the main bondage of man is sinful bondage. मनुष्य की जो गुलामी, बंधन, स्लेवरी, यह है कि वो पाप के बंधन में है। Man's slavery is sinful slavery. People in the world, anybody, anywhere, any country you belong, any region you belong, any nation you belong, all the mankind, they are in bondage of sin. And Jesus talks about freedom from sin. पाप की बंधन में, पाप की उस गुलामी में है। रोग बीमारियां पाप की गुलामी से आता है, गरीबी ये पाप की गुलामी से आता है, गड़बड़ियां पाप की गुलामी से आता है। ये सब जो है गड़बड़ आप जो दुनिया में देख रहे हैं, ये सब पाप की उस गुलामी से आता है। और परमेश्वर यीशु मसीह आपको आजाद करने की बात करता है। तो जब ये बात कर रहे थे तो कुछ लोग उधर थे, हम तो किसी के गुलाम नहीं थे, आप कैसे कह रहे हैं कि आपको आजादी मिलेगा? तो इस बात पर यीशु मसीह ने कहा, कहता है हम तो किसी के और कभी किसी के दास नहीं रहे। 33 में लिखता है, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? आज आप भी सोचते होंगे, आई एम नॉट इन बॉन्डेज ऑफ एवरीवन, आई एम नॉट बाउंड टू एनीवन, मैं तो किसी का गुलाम नहीं। आप सोचते होंगे जैसे ये लोग पूछ रहे यीशु मसीह, हम तो किसी गुलाम नहीं थे, हम अपना खाना खाते हैं, अपना घर में रहते हैं, अपना काम करते हैं, कोई हमें खिलाता नहीं है, कोई हमारे वो नहीं है, हमारे ऊपर कोई नहीं है। तो यू आर थिंकिंग दैट वे, आप भी उसी तरीके से सोचते होंगे। ये वो कह रहे हम तो किसी के गुलाम नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? आपकी जो बॉन्डेज, आपकी गुलामी का पहचान यीशु मसीह खुद देता है। देखिए 34 पद में कहते हैं 34 यूहन्ना 8 उसका 34, वो कहता है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। अब कई लोग सोचते हैं कि मैं किसी का गुलाम नहीं हूं, है ना, मैं किसी का गुलाम नहीं हूं, मैं अपना काम करता हूं, मैं किसी की परवाह नहीं करता हूं, मैं अपना काम करता हूं, अपना कमाता हूं, अपना रोटी खाता हूं, मैं किसी का गुलाम। लेकिन यीशु मसीह he is talking about something else which you badly are bound in. यीशु मसीह इधर कुछ और बात की वो कह रहे हैं, वो गुलामी के बारे में। वो तो बहुत ही सख्त है, वो बहुत ही जरूरी है। वो ये है, कहते हैं जो पाप करता है वो पाप का दास है, गुलाम है। जो पाप में है वो पाप का गुलाम है। If anybody is in sin, he is bound to sin, he is a servant to sin, he is a slave to sin. आप सोचते मेरे अंदर क्या पाप है? पाप शैतान का, दुष्टात्मा का, उसकी विचारों का, और पाप की ख्यालात का, और पाप की बातों का, पाप की चाल चलन का, पाप के कर्मों का, पाप की सोच का, पाप की जीवन शैली का। यस, ए मैन एंड वुमन, एक आदमी औरत, एक इंसान जो है पाप में गुलाम है, उसकी सोच से, पाप की सोच से, पाप के कर्मों से, और पाप की जो है उसकी सारे जीवन शैली से, by his conduct, by way of sinful speaking, by way of sinful thought, by his character, mankind is bound in sin. मेरे दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे दुनिया में पाप के बंधन में हैं। उससे हम तो आजाद है,
हम तो हिंदुस्तान आजाद हुआ है अंग्रेजों से, ब्रिटिशर से आजाद तो हुआ है हुकूमत से। हम अपनी हुकूमत, अपनी सरकार, अपनी वो बातें कर सकते हैं, लेकिन आपकी आत्मा की आजादी हुआ क्या? आपकी मन की आजादी हुआ क्या? आपके जीवन की जो आप जी रहे आपके अंदरूनी, उसकी आजादी हुआ है क्या? कोई कोई बंधन, अलग अलग बंधन, मैं तो पाप की, इसमें से पाप की करता है, तो सचमुच कौन ये इस बंधन से छुटकारा मिलेगा? कोई कोई भय का गुलामी है, वो हमेशा जिंदगी भर डरते रहता है, डरते रहता है, डरते रहता है। कोई कोई बीमारी का गुलामी है, कोई गरीब का, उससे लड़ते ही रहता है, उससे छुटकारा पाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन बहुत होता नहीं। कोई कोई और किसी और शराब का गुलामी, कोई कोई और बात की गुलामी। लेकिन इन सारी चीजों से परमेश्वर आजादी देना चाहता है, उसके नाम की महिमा। हालेलुया। कोई कोई शराब से, कोई बंधन से, कोई दुष्टात्मा से, कोई बदरों से, कोई जिन्नों से, कोई भूत प्रेत से, कोई रोग बीमारी से, कोई गरीबी से, कोई पाप से, कोई और कोई बातों से, सबसे गुलामी में है। और इसलिए आपके जीवन में आप आजाद महसूस नहीं कर सकते। यू आर नॉट फीलिंग फ्रीडम, नो लिबर्टी, नो फ्रीडम, यू आर बाउंड बाय समथिंग। इसलिए आपको आजादी महसूस नहीं हो रही, आपको कोई बंधन में है आप, कोई ना कोई बंधन में। इसलिए यू आर नॉट हैप्पी, यू आर नॉट एंजॉयिंग हैप्पीनेस ऑफ लाइफ। इसलिए जीवन की जो वो आनंद जो है वो नहीं उठा पा रहे। कोई ना कोई बंधन, समथिंग इज आफ्टर यू, कोई ना कोई बंधन आपके पीछे पड़ी हुई है। But the Lord is talking about real freedom. सचमुच क्या कौन है आपको सचमुच उस बंधनों से छुटकारा दे सकता? लोग सोचते हैं नहीं, कोई जादू टोने वाला सियाना मंत्र पढ़ता है, वो लोगों को धमकाता है, मैं ऐसा कर दूंगा, तो आप जिंदगी भर डरते रहते हैं और उसके जादू का असर आपके जीवन में देखते और भी डर जाते हैं। वो कर रहा है, उसकी बंधन में है। तो इसलिए आप क्या सोचते हैं, नहीं उससे छुटकारा चाहिए और उसकी बातें मानेंगे। और गुलाम है, गुलाम को जो कोई भी कुछ भी कहेगा तो वो तो करना पड़ता है उसको, क्योंकि आप उसके गुलाम हैं। आप किसके गुलाम हैं? यू आर नॉट स्लेव इन रियलिटी। सचमुच आप तो स्लेव नहीं, लेकिन आपको बनाया गया। यीशु मसीह क्या कहता है, इधर देखिए 35 में, दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। 36 में रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे, तो मतलब यीशु मसीह, यदि यीशु मसीह तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, यानी कि यीशु मसीह की जो आजादी, स्वतंत्रता आपको मिलेगी यीशु से, वो आपको सचमुच का स्वतंत्रता। ओह माय गॉड। लोग है ना, एक भाई आपको, हाँ जी आपको छोड़ दिया बोलते हैं, शैतान आपको छोड़ दिया, पर फिर आएगा वो। आपको सच्ची स्वतंत्रता, छुटकारा पाप से, बंधन से, भय से, रोग से, बीमारी से और हर वो चीज से जिससे आपका हक है, जो आपका आजाद रहना, उन सारी चीजों से सचमुच की स्वतंत्रता केवल यीशु मसीह से ही होता है। इधर वो कहता है, और कोई जगह से आप सोचते हैं कि मुझे वहां से कुछ छुटकारा मिलेगा, वहां से मुझे स्वतंत्रता मिलेगी, उधर से नहीं मिलेगी, दुष्टात्मा फिर जाएगा, फिर आएगा। बट यीशु मसीह क्या कहता है मालूम है? पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। सचमुच रियली फ्रीडम, सचमुच स्वतंत्र। फिर आपका डर नहीं होगी, फिर आपका कोई बंधन नहीं होगी, यस, फिर आपका कोई ऐसी भय का कुछ नहीं होगा। आप आजादी से अपनी आत्मा में आपको आजादी मिलेगी। आप कहीं भी जा सकते हैं, अकेला बैठ सकते हैं, रोग से नहीं डरेंगे, है ना। रियल फ्रीडम का जो चिन्ह है, मैं लक्षण बताता हूँ। रियल फ्रीडम, अरे देखो, अगर कोई अंग्रेज आके हमें बोल नहीं सकता, है ना, हम तो आजाद हो चुके हैं। एक दिन क्या हुआ, मैंने सुना कि आजादी का लड़ाई कैसे शुरू हुआ, कि
अंग्रेज लोग थे, ब्रिटिशर्स, हमारे ऊपर हुकूमत चलाते लोग, अपनी बिजनेस कर रहे, यहाँ से सारे कर और जो टैक्स सब ले जाके अपना सरकार बना दिया, गांवों में, शहरों में, पूरे हिंदुस्तान में। और उनकी पुलिस होती थी, वही हुकूमत चलाता है, उनका राज्यपाल होता था, उनका उधर से कोई इंग्लैंड से कोई भेजता है, इधर वो अफसर आके सबको वो चलाता है, वो कानून बनाता है, वो जेल में डालता है, वो कुछ करता है। तो हम तक हो गए, हमारे देश में आके वो दूसरे बाहर से आके वो कैसे हमारे ऊपर करेंगे। तो एक दिन कोई वो अंग्रेज मार रहे थे, तो कोई तो क्यों मार रहे मुझे, क्योंकि तुम हिंदुस्तानी हो, मैं अंग्रेज हूं, हमारा हुकूमत है। तो उन्होंने विरोध किया। क्या विरोध किया? नहीं, तुम नहीं मार सकते मुझे, ये मेरा देश है। तो विरोध हो गया, इसको देख के और हो गया, उसको देख के और हो गया, पूरे हिंदुस्तान में फैल गया, नहीं ये हमारा देश है, दूसरा नहीं हमारे ऊपर हुकूमत चला सकते। सब मिलके इधर उधर अलग अलग जगह में विरोध किया, ये आंदोलन शुरू किया और ब्रिटिशर से लड़े, और उसके बाद हमें इसी तरह सेम इन द सेम मैनर उसी तरह आपको जो रोग आपको धमकाता है, जो बीमारी आपको धमकाती है, जो दुष्टात्मा आपको धमकाता है, जो बाइक स्पिरिट आपको धमकाता है, जो गरीबी की हालत आपको धमकाता है, जो कर्जे की हालत आपको धमकाता है, और भी कोई चीज, कोई भी हो सकता है, कोई दुश्मन आपको धमकाता है, कोई मनुष्य आपको धमकाता है, आप डरते रहते हैं। आप सोचते हैं ये मेरे से ताकतवर है, वो धमकाता, कोई कुछ कहेगा मैं तुझे देख लूंगा, तुम्हारे बर्बाद कर दूंगा, तुम्हारे वो कर दूंगा, तो डरते ही रहते हैं। तो आप गुलाम हो गए उसके, लेकिन आप विरोध करेंगे, आपको आजादी मिलेगी। यीशु मसीह आपको आजाद करने आया। हालेलुया। यस, यीशु ने आपके लिए क्रूस पर मरा, आपके लिए लहू बहाया, पाप का सारा जितना भी आपने कर्जा था, वो सारे पाप के कर्जे से प्रभु यीशु ने आपको छुड़ाया। हालेलुया। यीशु मसीह ने आपको छुड़ाया, अब आप आजाद हैं। यीशु ने कैसे छुड़ाया? आपके लिए यीशु क्रूस पर मरा, आपके लिए यीशु मसीह क्रूस पर अपनी जान दिया, आपके लिए घोड़े खाए, श्राप से, मौत से, पाप से, गरीबी से, हर वो बंधन से यीशु मसीह ने आपको छुड़ाया। अब आप आजाद हैं। आजादी तब महसूस होगी जब आप यीशु के नाम पर विश्वास करोगे। हालेलुया, उसके नाम की महिमा। इस समय मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। इस्राएली लोग मिस्र देश में गुलामी थे। यस, फिरौन राजा के लाखों की संख्या में थे। इजिप्ट में, मिस्र में दोनों प्रकार के लोग, मतलब इस्राएली लोग भी थे और मिस्र देश के लोग। मिस्र देश की हुकूमत, मिस्र देश के लोग, फिरौन राजा इस्राएलियों के ऊपर हुक्म चलाते थे। उनको आजादी नहीं मिला, अपना हक नहीं है, उनको काम करना पड़ता है और उनको मारपीट होती थी। उस समय उन लोग सारे मिलकर अपनी उस दासत्व से, उस गुलामी से परमेश्वर को पुकारा। प्रभु जी, अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, तूने हमारे बुजुर्गों को वादा किया था तो हमें छुड़ाएगा। कब छुड़ाएगा? जब वो खराबने में, उस दुख में, उसकी उस बड़ी दुर्दशा में परमेश्वर को जब उन्होंने दुआएं दी तो प्रभु उनको उस गुलामी से छुड़ाने आया। गुलामी से छुड़ाने आया और मूसा नाम से एक व्यक्ति से दर्शन देके उसको भेजता है और मूसा के जरिए सारे इस्राएली लोग जितने भी थे उस बंधन से परमेश्वर ने मिस्र से उनको छुड़ाया। अब वो छुटकारा पाए हुए लगे और इजराइल एक देश बन गया। आज भी वो देश है इजराइल, उसी की संतान। उन दिनों की बात कर रहा हूं मैं। इजराइल एक देश है, वो प्रजा है, वो अपना आजादी हुआ। मिस्र में तो गुलाम था, इसलिए प्रभु ने उनको छुड़ाया। आपको भी पुराने जीवन से, पाप से, बंधनों से आप डरो ना, यीशु से आपको छुड़ाएगा। हालेलुया।
यीशु मसीह आपको छुड़ाएगा। अगर आप विश्वास करेंगे, यीशु आपको छुड़ाएगा। जो आपको बंधन में रखना चाहता है उनको परमेश्वर दंड देगा। उनको प्रभु आप निपटाएगा और आपको आजादी देना चाहता है, क्योंकि आप यीशु के पास आते हैं, यीशु पर विश्वास करते हैं। एक बार यीशु मसीह एक आराधनालय में मंदिर में गया तो देखा कि उधर एक महिला थी, बुजुर्ग सा, वो कुबड़ी हुई थी, उसकी शरीर टेढ़ी हो गई थी, सीधी नहीं खड़ी हो सकती थी। तो यीशु मसीह ने देखा, उस बुजुर्ग माता को आगे बुलाया, कहता है उसको स्पर्श किया और वो टेढ़ी थी कुबड़ी, और वो यीशु मसीह ने छूकर उसको चंगा किया। तो यीशु मसीह कहता है उधर के लोगों को कि 18 साल से दुष्टात्मा ने इसको ऐसा बंधन में रखी थी। 18 साल से, फॉर 18 years demon Satan has bound her. दुष्टात्मा ने उसको 18 साल से बंधन में रखे थे, इसलिए वो कुबड़ी हुई थी। आप कितने साल से अगर कोई बंधन में, 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से किसी के बंधन में है, किसी की बातों की बंधन में है, कोई किसी ने दम खाया, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, उसकी बंधन में है, यीशु मसीह आपको आजाद देगा। हालेलुया। यीशु मसीह आपको आजाद देगा। 18 साल, 20 साल, 38 साल की भी हो, 40 साल का भी हो, कितनी भी साल का हो, अब तक भी आप बंधन में है, the power of God will set you free. The truth will set you free. The truth is Jesus himself. प्रभु का शक्ति आपको स्वतंत्र कर देगा और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। वो सत्य है यीशु मसीह। यीशु मसीह आपको स्वतंत्र कर देगा और उसके नाम की महिमा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। आपको प्रभु स्वतंत्र कर देगा। इस सुबह के समय में आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। I am freed from sin and death, from hell and from curse and from diseases, from sickness, from poverty. मैं आपको ना प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, हर एक विश्वासी ये विश्वास करता है, मुझे आजादी मिली है पाप से, बंधन से, मौत से, नरक से, दुष्टात्मा से, रोग से, बीमारी से, श्राप से और गरीबी से, हर एक वो बंधन से मुझे आजादी मिली है, क्योंकि यीशु ने मुझे छुड़ाया। हालेलुया। जीसस विल सेट यू फ्री। यीशु मसीह ने मुझे स्वतंत्र कर दिया आपसे, नरक से, हर बात से। जो कोई भी बात आपको सता रही है, उस बात से यीशु मसीह ने आपको आजाद कर दिया। नाउ वी आर फ्री। किसने आजाद कर दिया? यीशु ने किया। पास्टर ने नहीं, यीशु ने किया। कौन आपको आजाद कर सकता है? यीशु मसीह कर सकता है। The Lord Jesus only can set you free. जैसे if the Son sets you free, you are free indeed. अगर पुत्र यानी कि यीशु मसीह तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। Do you really want real freedom? क्या आपको सचमुच की आजादी चाहिए? सचमुच की आजादी केवल यीशु मसीह दे सकता है। बाकी किसी के पास सचमुच की आजादी नहीं। आजादी की बात कर सकते हैं, मैं आजाद करूंगा। अंधा को राह कैसे दिखाएगा, रास्ता कैसे दिखाएगा? गुलाम जो पाप की गुलाम है, वो पापियों को कैसे छुड़ाएगा? यीशु मसीह इसलिए छुड़ा सकता है। नो, if there is anyone in the world who is perfect, that is Jesus. इस दुनिया में और कोई है संसार में सिद्ध है, एकदम परफेक्ट है, वो केवल यीशु मसीह। पार्टी किसी का भी ले ले, किसी के जीवन में परफेक्शन नहीं है, कोई सिद्ध नहीं, लेकिन यीशु मसीह सिद्ध है। Jesus did no mistake, Jesus did no sin. यीशु ने कोई गलती नहीं की, यीशु कोई गलती नहीं कर सकता, यीशु कोई पाप नहीं की, लेकिन बाकी सबने गलती की, बहुत सारे गलती, बड़े बड़े गलतियां की और पाप भी किए।
perfect. He alone can set you free. Yes. यीशु मसीह वो सिद्ध है, वो परिपूर्ण है, उसके अंदर कोई पाप नहीं है, वो कोई गलत नहीं करता, वो सिद्ध है। तो सिद्ध व्यक्ति ही जो है आपको या किसी को सच्ची मुच की आजादी दे सकता है। हालेलुया। Jesus, the perfect one, only can free you from sin, from bondage. Indeed, you get real freedom because Jesus is perfect one. No one is perfect. मैं आपको बताऊं, no one is perfect. No pastor is perfect. No church is perfect. Yes. No believer is perfect in the world. इस संसार में कोई भी विश्वासी परिपूर्ण नहीं है, कोई पास्टर परिपूर्ण नहीं, कोई चर्च परिपूर्ण नहीं है, कोई भी परिपूर्ण नहीं, कोई परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट कौन है? केवल यीशु मसीह। हालेलुया। वही आपको आजादी दे सकता है। हालेलुया। तो आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा कि अगर आपके जीवन में कोई ऐसा बंधन है, कोई ऐसा गुलामी है, आप गुलाम में है, यीशु मसीह आपको छुटकारा देगा। हालेलुया। उसके नाम की महिमा। यीशु मसीह महान प्रभु, सबका उद्धार करता है। इस पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा दिलों को जीतने वाला यीशु मसीह। उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल विश्वास करना कि यीशु ने आपके पापों के लिए, आपके श्राप के लिए, आपके बंधन के लिए, आपकी इस गुलामी के लिए, आपकी हर एक वो रोग के लिए, बीमारी के लिए, गरीबी के लिए, हर भय के लिए आपको जलना, आपके लिए यीशु ने क्रूस पर मरा। एक दुनिया में कई लोगों का एक गलतफहमी, वो सोचते हैं अच्छा पढ़ लिखने से क्या होता है, हम अच्छा पढ़ेंगे। मैं आपको बताऊं, अच्छा पढ़ लिखने से आप अच्छा वैज्ञानिक बन सकते या ज्ञानवान बन सकते, लौकिक ज्ञान। अच्छा इंजीनियर बन सकता है, अच्छा साइंटिस्ट बन सकता है, जहाज बनाया या कोई रॉकेट बनाया, मिसाइल्स बनाया या कोई पंखा बनाया, जो आपको जीने की। अच्छी पढ़ाई आपको पाप से नहीं छुटकारा देगा। नहीं, पढ़े लिखे ऐसे बहुत से लोग हैं। There are many good educators. They are still bound in sin, in bondage. बहुत से ऐसे विद्यावान हैं जो बड़ी बड़ी फिलॉसफी की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, उन लोग खुद भी पाप के बंधन में हैं। पौलुस जो है, he was a scholar. जब वो प्रभु में नहीं था, उसकी ज्ञान के बहुत ही ज्यादा घमंड था उसको। He was a scholar, विद्वान था वो, सारे बातों को जानता है, दुनिया के सारे चीजों का ज्ञान रखता है। आज है ना फिलॉसफी बोलते हैं, फिलॉसफर्स, ज्ञानवान, जो अपने बहुत ही ज्ञान रखते हैं, अच्छी चीजें बोलते हैं, आपके मन को खुश कर देते हैं, अच्छी बातें बोलते हैं, ज्ञान की बहुत मिलता है आपको, तो आपसे तो मन खुश हो गया। अच्छे चुटकुले सुनाते हैं, अच्छे शायरी सुनाते हैं, अच्छी पोएट्री है, अच्छा लिखते हैं। उनमें से बहुत से अधिकांश लोग गुलामी में हैं, बंधन में हैं। तो पौलुस वो बड़ा स्कॉलर था, लेकिन उसको उस मौत से, उस नरक से, जिसकी सख्त जरूरत थी उसके जीवन में, इसलिए नहीं छुड़ाया। इसलिए जब वो प्रभु में आया तब उसको महसूस हुआ। रोमियो की पुस्तक में 7 अध्याय में कहता है, मैं एक बार आपके लिए पढ़ता हूँ। रोमियो बाइबल में रोमन्स चैप्टर 7, रोमियो की पुस्तक उसका 7 अध्याय में, उसको ना और चीजों की ज्ञान था, उसको बड़ा फिलॉसफर था, अच्छा बोलता है। यस, किसी भी शो में है तो कोई स्टेज पे अच्छा बोलता है, किसी से बात करनी है अच्छा बोलता है, अच्छा आर्गुमेंट करता है, पर उसको सचमुच से जो जरूरत थी वो उसको नहीं मिला। ये मैं पढ़ता हूं आपके लिए, देखिए रोमियो उसका 7 अध्याय 5। वो क्या कहता है, अपनी हालत को देख के जब प्रभु में आया तब उसको पता लगे, ओहो मैंने सोचा अच्छा विद्या प्राप्त करने से मैं स्वतंत्र हो गया था,
अच्छे ज्ञान प्राप्त करने से दुनिया के मैं स्वतंत्र हो गया था। लेकिन इधर वो कहता है कि प्रभु में आने के बाद 7 अध्याय और उसका 24 पद, रोमियो 7 का 24, वो कहता है मैं कैसा अभाग मनुष्य हूं, दौर्भाग्य मनुष्य, ये कैसा अभाग मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? कौन मुझे स्वतंत्र करेगा इस मौत से, इस मौत का देह से, इस नरक से, इस दुष्टात्मा से, बदरों से, पाप से? पाप का देह है वो, इससे कौन, इस पाप से कौन मुझे छुड़ाएगा? मैं अभागी हूं। इतना ज्ञान रखने वाला अभाग कैसे हो गया? उसको महसूस हुआ, ओ माय गॉड। बहुत से लोगों को यह महसूस होता तब जब आप प्रभु में आएंगे। इधर लिखा है जब वो ऐसा कर रहा था, उसको आखिरी में यीशु मसीह ने और प्रभु की आत्मा ने उसको स्वतंत्र कर दिया। अब देखिए कहता है 8 अध्याय रोमियो उसका दूसरा वचन, क्योंकि जीवन के आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। पाप और मौत, पाप की व्यवस्था, पाप की नियम या पाप की गुलामी से मुझे स्वतंत्र कर दिया और मौत की व्यवस्था से, नियम से मुझे स्वतंत्र कर दिया। दो बातें उधर कहता, पाप और मौत, पाप और मौत, पाप की गुलामी से मुझे स्वतंत्र कर दिया। कौन? प्रभु यीशु। मौत क्या है? मौत से डरते हर कोई, डरते हैं ना, हर कोई मौत से डरता है। अरे बाप, अगर आपको पता लगेगा बहुत जल्दी मरने वाला था, आपको डर लगता है, पीड़ा होती है, आप सोचते कि घबराहट होती है, अरे मेरा जीवन खत्म होने वाला। पर ये कहता है कि पाप की गुलामी से और मौत से मुझे स्वतंत्र कर दिया। जब प्रभु यीशु मसीह आपको स्वतंत्र कर दे, आप मौत की महसूस नहीं होती, आपकी मौत महसूस ही नहीं होती। यीशु मसीह में आपको मौत की महसूस, इन जीसस you will have no sense of death at all because you are freed. Jesus has set you free from the bondage of death and sin. यीशु ने आपको मौत और पाप से स्वतंत्र कर दिया, इसलिए उसका महसूस नहीं होता, उसका भय नहीं होता। हालेलुया। आपको, अगर आप प्रभु में हैं, प्रभु में आनंदित कर रहे हैं, तो एक विश्वासी है, आपको मौत का महसूस, डर, भय, काम कराना नहीं होता, आपको कोई डर नहीं होता। 1-1.5 साल पहले डॉक्टर बिली ग्राम, जो दुनिया में अच्छा माना हुआ एक सुसमाचार प्रचार, गॉस्पेल प्रीचर, पास्टर मान लो, सो वो थे। जब वो उनसे पूछा गया, यीशु को मानते थे ना, वो प्रचार करते थे यीशु का, तो उनसे पूछा गया कि लास्ट स्टेज में थे वो, बहुत ही उम्र होने के बाद, लगभग 100 के होने के वो बड़े थे, तो उनसे पूछा कि कैसे महसूस कर रहे हैं आप? उन्होंने क्या बोला मालूम है? मुझे कोई ऐसी डर, भय, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा एड्रेस चेंज हो रही है, मेरा पता चेंज हो रही है। क्या? अब मैं इधर हूं, यहां से स्वर्ग में मेरा एड्रेस, अब मैं उधर स्वर्ग में जा रहा हूं, मेरा एड्रेस यहां से उधर ट्रांसफर हो गया, शिफ्ट हो गया। जीसस when he sets you free, यीशु मसीह जब आपको आजादी कर देगा, सच में आपका केवल पता ही चेंज हो जाएगा। आप इधर रहते हैं, हिसार में रहते हैं, हरियाणा में, इस जो भी आपका एड्रेस है, आपको ना मौत नहीं आएगी, आपका एड्रेस चेंज होगा। यहाँ से उदाहरण के लिए मान आप राम स्वरूप जी इधर है, पता, तो आप जब इस संसार को छोड़ेंगे, मौत नहीं आएगी, आपका एड्रेस चेंज हो जाएगा। तो अब कहाँ है? स्वर्ग में मेरा एड्रेस, सो पता। हालेलुया, यस। प्रभु यीशु सचमुच क्या जाने देता है? मैं आपकी प्रार्थना करना चाहता हूँ, सचमुच आजादी जो है आप महसूस करें। सो your sense, you feel, experience the real
लोग यीशु मसीह की ओर देखते हैं। सचमुच अपनी आत्मा में, मन में, जीवन में पाप की बंधन से और मौत की बंधन की उस गुलामी से छुटकारा पाए, आजादी पाए। लहू से लोगों को छुटकारा, नाम से लोगों को छुटकारा। हमारे देश को आशीष दे। इस देश में पाप अपराध सब बंद हो, शांति अमन हो। हर एक नागरिक पर शांति अमन की कोशिश करें, मदद करें। हमारे देश की सरकार के लिए, यूनियन गवर्नमेंट के लिए, भारत सरकार के लिए, अलग अलग स्टेटों की सरकारों के लिए, प्रशासन के लिए प्रार्थना करते हैं। इस कोरोना बीमारी से भी हमें छुटकारा दे। धन्यवाद पिता परमेश्वर में प्रार्थना करते हैं। लोग अगर कोई पाप के गुलामी में, बंधन में, या कोई मौत के बंधन में, या रोग के बंधन में, बीमारी के बंधन में, भय के बंधन में, गरीबी के बंधन में, नरक के बंधन में, दुष्टात्मा के बंधन में, यीशु के नाम में छुड़ा लिया जाए, क्योंकि तूने कहा है